I've shared it on the screen, children. चलिए बेटा, let's see. First of all, see the instructions. Paper has 4 sections. Please see this very carefully. We've got 4 sections and 33 questions in the question paper. Section A has 14 questions of 1 mark each. पिछले साल तक सिर्फ 6 questions आते थे 1 mark वाले. Okay बेटा? अब देखो इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, that is 2 case based questions. Section B has 9 questions of 2 marks each. ये भी change हो गया है. Section C has 5 questions of 3 marks each and section D has 3 questions of 5 marks each. So we'll move on now. There is no overall choice. However, you have some internal choices. चलिए ये देखिए. पिछले साल तक we just had 6 questions. Why does endosperm develop precede embryo development? How many meiotic divisions are required to produce 76 seeds in a guava fruit? How does pollination take place in water hyacinth and water lily? Name the glands that contribute to human seminal plasma. A snapdragon plant with violet flowers was crossed with another such plant with white flowers. F1 progeny obtained had pink flowers. Explain the inheritance pattern seen in offsprings. Difference between aneuploidy and polyploidy. Predict the effect if the codon UAU coding for an amino acid at the 25th position of a polypeptide of 50 amino acids is mutated to UAA. याद है एक डिजीज पढ़ा था ये वाला, म्यूटेशन होती है. Difference between pro-insulin and mature insulin. Name the, बताना जरा इसका बेटा डिफरेंस. अभी पढ़ा है ये तो लेटेस्ट. प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन में डिफरेंस क्या होता है? Are you there students? Yes ma'am. अभी पढ़ाया था, स्ट्रक्चर बना के समझाया था. डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? पीछे का फिर भी नहीं पूछ रही हूँ कि हो सकता है याद ना हो. एटलीस्ट टेल मी दिस. अभी बताया था. हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन प्रो इंसुलिन? मैम प्रो इंसुलिन वो इनएक्टिव होता है. एक तो इनएक्टिव होता है. स्ट्रक्चरली इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिखाई थी बना के? प्रो इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी बेटा? स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, फिर बीच वाली गायब हो जा रही थी. एक ही थी शायद. There were 3 polypeptide chains in proinsulin. Yes ma'am, 3. हाँ, जो बीच वाली होती है, जो कनेक्टिंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो बाद में हट जाती है मैच्योर इंसुलिन जब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं. याद आया? अभी जस्ट पढ़ा है. वेरी आ बैड. गया. आ गया. प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी. वो जो एस टाइप की एक चेन थी, कनेक्टिंग चेन, वो हट जाती है. तभी तो साइंटिस्ट ने सोचा था कि हम 2 से ही बना लेते हैं. हाँ, लिंकर पॉलीपेप्टाइड. लिंकर पॉलीपेप्टाइड हट जाता है. नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स. ये भी अभी रिसेंटली कराया. बताओ. Which of the 3 forest template? ये तो खैर अभी पढ़ा ही नहीं है, so no point discussing this with you people. ये वाले देखिए assertion reasoning के questions में. Primary transcripts in eukaryotes are non-functional. Methyl guanosine triphosphate is attached to the 5' end of hnRNA. इसके assertion reasoning है. Second देखिए क्या है. All organisms with lethal mutation may not even develop beyond the zygote stage. Assertion and reasoning. E. coli having PBR322 with DNA insert at BAM-H1 site cannot grow in medium containing tetracycline. Just recently ये अभी मैंने कराया था PBR322. I don't know if you remember. नहीं याद हो, दोबारा पढ़ना हो चैप्टर, सिलेबस के बाद बता देना. A community with more species is more stable. ये नहीं पढ़ा है अभी, so you cannot tell me about this. Okay. Beta, in Ophrys, one petal of the flower bears an uncanny resemblance to the female bee. याद है ये वाला? क्या टर्म था इसके लिए? क्या था? मैम वो एक पेटल फीमेल डिसीविंग वाला था. रिमेम्बर? डिसीव वाला. डिसीविंग पॉलिनेशन. देखो ये चीज नहीं आई, पहले नहीं था ये. प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये पैटर्न में कुछ नहीं था जो ये दिख रहा है. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस. ठीक है. Presence of dragonflies can reveal changes in the water ecosystems more quickly than studying other animals and
plants. In fact, from the nymph to the adult stage, dragonfly has a significant positive ecological impact. Dragonfly eggs are laid and hatched in or near the water. In fact, both water and once hatched, dragonfly live underwater, which enables them to eat mosquito larvae, other aquatic insects like tadpoles and small fish. Adult dragonflies capture and eat adult mosquitoes. Commonly, community-wide mosquito control programs that spray insecticides to kill adult mosquitoes also kill dragonflies. हाँ जी बेटा, देखो जरा कितना आप लोगों का कॉन्सेप्ट बन जाता है. अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स पढ़ाई अभी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा. बाद में डिस्कस करते हैं. एक और assertion reason. पेपर सही लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है. assertion reason एक और आया, देखिए बेटा एक और इस टाइप का क्वेश्चन 8 मार्क्स का ये जो बेटा ये देखो, ये 4 मार्क्स का ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 इंट्रोड्यूस हुआ ये पहले नहीं था. एक और इस तरह का आया है आपके सिलेबस में, ये चीज और इंट्रोड्यूस हुई है, ये वाला. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस. Sickle cell anemia is a genetic disorder where the body produces an abnormal hemoglobin called hemoglobin S. Red blood cells are normally flexible and round, but when the hemoglobin is defective, blood cells take a sickle shape. It is inherited blood disorder. ये सब दे दिया. फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड. Sickle cell anemia is dash disease. ये fill-ups है with options given to. Comprehension है. बेटा comprehension मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि चलिए जरा चेक करते हैं. If both parents have sickle cell trait, then there is dash of the child having sickle cell anemia. 25%, 50%, 75%, no risk. इसका डायरेक्ट आंसर देखिए कहीं मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा. पढ़िए जरा इसमें, बताइए. हाँ मैम, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, बस उसके बारे में दिया है. यस, ये नहीं समझ के चलना है कि कॉम्प्रिहेंशन है. इसका आंसर डायरेक्टली कोई भी पैसेज में मिलने वाला नहीं है. ये जरूर है कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में दे दिया. अच्छा ये बताओ, सिकल सेल एनीमिया इज डैश डिजीज, एक्स-लिंक्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और वाई-लिंक्ड. अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सिर्फ ये दिया जेनेटिक डिसऑर्डर. कहीं पे भी ये ऑप्शंस आपके पास क्लियर नहीं है कि ये कौन सा डिजीज है. If one parent has sickle cell anemia, other has graph beta is why CBSE has become all of a sudden they have fallen in love with graphs. मैथ्स में तो वो, इंग्लिश में तो बहुत ही ज्यादा है. हाँ मैम, उसमें तो मैम वो इंग्लिश कहीं से लग ही नहीं रही थी, मतलब. और वो सॉल्यूशंस वाला ही बना था कि एक बीकर में कुछ है उसमें भी. यस, वो जैसे 10th में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, समथिंग लाइक दैट. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन एज कंक्लूजन. Patients with HCD are less likely to be infected with malaria. ये कीनिया का कोई डेटा है. अब आपको इसको रीड करना है एंड इसको रीड करने के बाद ये आंसर्स देने. ये ग्राफ को रीड करने के बाद मुझे लग रहा है सबको स्टैट्स पढ़ानी पड़ेगी पहले, चाहे इंग्लिश हो या बायो. हमें इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यस बेटा, प्रॉब्लम ये है कि अब इन्होंने फर्स्ट सैंपल पेपर निकाला है पहला. Now, gradually what will happen is we'll get some sample papers in a month in the market of this kinds. I'm also waiting, जैसे ही सेकंड आएगा तो सेकंड में ये कोई दूसरी चीज इंट्रोड्यूस करेंगे. एक साथ सारी चीजें हमें नहीं बताता है सीबीएसई हमेशा. So we'll wait for a second paper. Second paper आने से पहले हम क्वेश्चंस ऐसे वाले बनाएंगे. अगर पहले से नहीं करा होगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, मतलब ये ग्राफ पढ़ने में भी टाइम अलग लग जाएगा. हाँ, टाइम जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं है इसको करने में. सो व्हाट आई वाज वांटिंग इज कि मार्केट में तो सैंपल पेपर जब आएंगे तब आएंगे. नेट पे जैसे जैसे आते जा रहे हैं हमारे पेपर्स, लेट मी कीप डूइंग इट विद यू. ये वाली जो चीज है, जो लोग सो रहे हैं, क्लासेस अब भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सच में मुश्किल होने वाली है. आई एम टेलिंग यू. सी दिस कंक्लूजंस यू हैव टू ड्रॉ, एंड इतनी इजी भी नहीं है. चलो देखो पहला ग्राफ देखो. पेशेंट्स विद एससीडी are less likely to be infected with malaria. देखो जरा ट्रू और फॉल्स क्या करना है इसमें. The following statements are drawn. Patients with SCD are more likely to be infected with malaria. Over the years, the percentage of people infected with malaria. Correct alternative बताना है इसको देख करके.
आपको पहली स्टेटमेंट ट्रू लग रही है, फॉल्स लग रही है? एससीडी आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया। बहुत सही केयरफुली लग देख के बताओ। ग्राफ से सही लग रही नहीं है, ग्राफ देख के। नो मैम। Patients with SCD are less likely to be infected with malaria. बेटा 1998 में देखो, approximate how many patients are having SCD? 11. 11 no. नहीं, SCD I'm डार्क वाला 30. and एसिडी SCD आपका शेडेड वाला है ना, ब्लैक वाला। yes ma'am. ठीक है। एंड विदाउट SCD वाले कितने जा रहे हैं? 50 से भी ऊपर जा रहा है। ओके, वेयर इज मलेरिया इन दिस? Percentage of patients with malaria. Malaria is up to 55. सेकेंड केस में इधर डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 एंड 55 अप्रोक्सीमेटली, 55 से भी ज्यादा। सेकेंड में देखिए बेटा 8 एंड 50। थर्ड में कितना डिफरेंस आ रहा है? 2000 में अराउंड 11 एंड 46 या 47। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखिए, अगर SCD है तो बहुत कम चांसेस है कि मलेरिया भी है, isn't it? स्टेटमेंट ट्रू। एंड इन सब चीजों को ट्रू फॉल्स चारों को चेक करके फिर इस ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है। ओनली 1, 1 and 4, 3 and 2, 1 and 3। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहले ऑप्शंस नहीं देखने हैं, पहले इन चारों का ट्रू फॉल्स बना लेना है। दिस इज हाउ वी डू सच क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिशंस आल्सो। वन का तो पता ही चल गया, अब थर्ड वाला और देख लेते हैं बस, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। बच्चे ये करते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं फर्स्ट को, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ चेक करते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपने फर्स्ट को यहाँ भी चेक करा, यहाँ भी चेक करा, यहाँ भी चेक करा, इट इज बेटर आप चारों स्टेटमेंट्स को पहले यहाँ पे TF बना लो कि ट्रू है कि फॉल्स है, फिर आंसर देना। सेक्शन बी देख लेते हैं एक बार। कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ओरल पिल्स। Karyotype of a child shows trisomy. Identify the disorder. Explain 4 disorders of microRNA association. Explain the methods to increase the competency of bacterial cell membrane to take up the recombinant DNA. What are bioreactors? How are large volumes of cultures maintained and processed? I told you bioreactor पे हमेशा क्वेश्चन आता ही है। Explain the role of enzymes in the extraction of DNA. What are sticky ends? State the significance in DNA technology. Explain the procedure by which PCR हमने डिटेल में अभी जस्ट करा था। Explain how advanced XC2 conservation, ये भी नहीं करा है, ये भी नहीं करा है। 21 वाला करा है हमने। कौन सा? 20 वाला एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम राइजोपस। बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम राइजोपस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA के जो भी स्टेप्स हमने करे थे वो सारे स्टेप्स सेम चले जाएंगे इसके अंदर। स्पेसिफिकली उन्होंने राइजोपस कर दिया है। कोई एक बार अलग नहीं होगा। करना पड़ेगा आप लोग, आइसोलेशन वहां तक जाते जाते सब कुछ। ये तीनों क्वेश्चंस अभी नहीं करे हैं आपने। 23, 24, 25 एक साथ डाल दिए इन्होंने इकोसिस्टम वाले से। और लो एक और ग्राफ आ गया आपका। A fully developed fetus initiates its delivery from the mother's womb. How would you find the genotype of a pea plant with violet flowers? Define flocks. Farmer noticed that nematode infection in tobacco plants has resulted in the reduction in yield. Suggest a strategy which provides defense for providing resistance. अभी पढ़ा था ना टबैको के लिए क्या करा था रेजिस्टेंस के लिए? मेलोडिकाइन इनकॉग्निटा वाला, एग्जैक्टली उसको हमने कैसे सेव करा था टबैको प्लांट को, वही पूछ रहे हैं। बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है, दिख रहा है मुझे। अभी कराया था ये टबैको वाला कि कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम टबैको को मेलोडिकाइन से। लेट्स सी दिस ग्राफ। The graph given below represents 3 categories of organism responses. Element to cope up with stressful conditions. Identify them. Given below are examples of some of the activities performed by animals category wise. In summers we sweat, sometimes desert leaders bask in the sun, they move into shade. ये बेटा वो 3 वो होते हैं, कॉन्फॉर्म, रेगुलेट। अभी नहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने? पढ़ लिया था? हम पढ़ लिया था, स्टार्टिंग में पढ़ा था। यस, तो वही ग्राफ है ये वही वाला ग्राफ है, रेगुलेटर्स, कॉन्फॉर्मर्स। यस बेटा ये वही चीज है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन डी।
ये लीजिए, ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वो है, हार्मोनल ग्राफ। प्रोजेस्टेरोन वाला है। ये तो ज्यादा Yes, मुश्किल ma'am. नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है, इसको रिवाइज करेंगे तो हो ही जाएगा। बेसिकली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा, देखो सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखो। सिर्फ पूरा एक तरह से देखा जाए तो ये इसी से रिलेटेड 5 मार्क्स है पूरे। मतलब बहुत सोच समझ के बनाया है। The following figure shows a fetus within the uterus. On the basis of the given figure, answer the questions. Choose and name the correct parts. You have to label these parts. Okay. Mention the role of B in the development of the embryo. Once you identify what is this, what is B. फिर उसके बाद name fluid surrounding the developing embryo. Fluid surrounding the developing embryo. Evaluate the suitability of DNA, RNA as a genetic material. Conditions necessary for a material to be used as genetic material. याद है वो बताई थी कौन सी conditions जरूरी होती है genetic material के लिए? Yes, And ma'am. by the stability of the one that is preferred as an ideal genetic material. इन दोनों में से कौन सा ideal होता है और क्यों होता है? या फिर mechanism of DNA replication. There is a choice of 5 marks. Identify, name the disease in which the patient cell lose the property of contact inhibition. State the possible causes and explain any 3 methods to accurately detect the pathological changes that take place due to this disease. A patient has tested positive to ELISA test. Identify the disease and the pathogen responsible. ये 5 marks का क्वेश्चन देखिए बेटा इसी चैप्टर से। ये कौन सा होता है एलिसा टेस्ट? टेस्ट कौन सा है? हम लोग अभी जो चैप्टर कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा। ओके, ये 5 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही है ये वाला क्वेश्चन। सो आफ्टर वी फिनिश दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। गॉड नोज पहले वाले भी तो आप लोगों के साथ कर ही चुके हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव रिवाइज्ड। रिप्रोडक्शन से देखिए बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से है ही है। देखो चॉइस है लेकिन दोनों रिप्रोडक्शन से ही है। इफ यू गो एंड सी दिस देन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। चॉइस कितनी है? कुछ ज्यादा तो लग नहीं रही बेटा मुझे, अगर आप देखो तो। अगर आप देखो सेक्शन डी में आपको जरूर चॉइस मिल रही है, हर क्वेश्चन में चॉइस है। 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के तो हर क्वेश्चन में चॉइस है, लेकिन इसमें बहुत ट्रिकी है। चॉइस एक ही चैप्टर से है। अगर ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है तो दोनों रिप्रोडक्शन से है। ये इनहेरिटेंस वाले से हैं तो दोनों इनहेरिटेंस से हैं। ये डिजीज है तो दोनों डिजीज ही हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि चॉइस है तो ये चैप्टर छोड़ दो ये चैप्टर कर लो, वो हम नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी क्लियरली इंडिकेटेड कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ से, 5 मार्क्स का एक इनहेरिटेंस से और एक 5 मार्क्स का रिप्रोडक्शन से। ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। एक और पेपर आने दीजिए, आई विल बी वेरी श्योर अबाउट इट। देन बायोरिएक्टर्स, ये वाला क्वेश्चन भी इसी से आ रहा है। इसमें भी बेटा देखो चॉइस कहाँ है। आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। ये देखिए एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। इसमें भी यही सीन था, एनी 4 आउट ऑफ 5। असर्शन रीजनिंग में तो मेरे ख्याल से हर एक में चॉइस है, wherever there is an assertion reasoning, और इसमें कोई चॉइस है ही नहीं। ये जो इनिशियल आपके क्वेश्चन है फर्स्ट 10 इनमें कोई चॉइस नहीं है। हाउएवर 11th 12th जो क्वेश्चन है आपका ये वाला 11th में चॉइस है, 12th 13th में इसमें भी चॉइस नहीं है। मैम असर्शन रीजन पिछले साल में आते थे? असर्शन रीजनिंग बेटा पिछले साल स्टार्ट हो गया था, 2 क्वेश्चन थे असर्शन रीजनिंग के। लेकिन ये जो चीज अभी स्टार्ट हुई है ये कॉम्प्रिहेंशन जो 2 डाल दिए 8 नंबर के हो गए। 4 मार्क्स वो 4 मार्क्स ये नहीं आता था। जितना ज्यादा पेपर ऑब्जेक्टिव होता जाता है उतना ज्यादा स्कोरिंग मुश्किल होती जाती है, बिकॉज या तो वो सही है या वो गलत है। छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बनाते हैं, बिकॉज या तो वो राइट है या वो रॉन्ग है, या आपको मार्क्स मिलने हैं या 0 मिलना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो चलो 2 दे दो, 2.5 दे दो, ऐसे चल जाता है। बट ऑब्जेक्टिव्स में अगर ध्यान से देखो बेटा तो कितना पार्ट ऑब्जेक्टिव हो गया अब आपका। 10 मार्क्स तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए शुरू वाले, 4 असर्शन रीजनिंग आ गए 14, और 4 मार्क्स ये वाले ले लो आप, 8 मार्क्स ये इंट्रोड्यूस हो गए, ये भी ऑब्जेक्टिव में चले जा रहे हैं चारों। Isn't it? 14 + 4 + 8 इस तरह से अगर आप देखो तो 26 मार्क्स का तो एंटायरली ऑब्जेक्टिव ही जा रहा है।
एंड लास्ट डी सेक्शन में भी 2 पार्ट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव पे जा रहे हैं इनके। जैसे ये देखिए, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाइंग है एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा, 2 मार्क्स का होगा ये, क्योंकि 1 3 इधर और 2 5 मार्क्स का पेपर है ये। सो 2 मार्क्स इसमें चले गए। तो ये भी यस है या नो है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपने ABCD को करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये भी मैं इसी, आई वुड कंसिडर दिस एज एन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर ओनली, isn't it? Yes. Okay, we'll continue with this. I'll post this PDF on the group. Okay beta? Okay. Okay beta. Yes, Goodbye. ma'am. Okay, Thank you. bye. Thank you, ma'am. मैम 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 मोहित अमन मोहित मैम मुझे आवाज नहीं आ रही मैम, दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ मैम।